want you to look at James chapter 1, and I'm going to read the first 12 verses, and then I want you guys, Solomon will read it as well. So I'll read it in English. और मैं आपको चाहता हूँ कि आप याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 1 से लेकर 12 आयत को निकालें और मैं पहले पढ़ूंगा और उसके बाद भाई सोलोमन इसको पढ़ेंगे. James, a servant of God and of Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Greetings. Today's subject is trials and temptations. Consider it a pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind, that a man should not think he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all he does. The brother in humble circumstances ought to take pride in his high position, but the one who is rich should take pride in his low position, because he will pass away like a wildflower. For the sun rises with the scorching heat, withers the plants. Its blossoms fail, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich man will fade away, even while he goes about his business. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Amen. परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर-बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद से की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है. ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझ में प्रभु से कुछ मिलेगा. वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है. दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा. क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है. इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा. धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है. Amen. Today we're going to be talking about the truth about trials. और आज हम बात करेंगे उस सच्चाई के बारे में जो कि परीक्षाओं के साथ जुड़ी हुई है. Trials, faith, believers under test, that's you and I. और परीक्षाएं जो है वो विश्वासियों पर आती हैं, जो कि उनके विश्वास की परख करती है, जो कि आप और मैं हैं. James reminds us of the reality that even in the Christian life, और याकूब जो है वो हमें सच्चाई के बारे में बताता है कि यहाँ तक कि मसीही जिंदगी में भी there are trials and temptations. उसमें भी हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं. Have you ever been there? क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है? I'm sure you have. और मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ है आपके You're probably going through one right now. और हो सकता है कि किसी परीक्षा से अभी आप गुजर रहे हैं. The Christian does not have to be a victim of his circumstances. और एक मसीही जो है उसे एक शिकार बनने की जरूरत नहीं है अपनी परिस्थितियों में, अपने हालातों में. But can have victory even in the times of trials and the testings. और यहाँ तक कि वो अपनी परीक्षाओं में भी, अपनी मुश्किलातों में भी उन हालातों पर जीत पा सकता है. James tells us no matter what the trials are on the outside. और याकूब ने हमें बताया कि हमारे हालात जो है वो बाहर से चाहे जैसे भी क्यों ना हो, We can experience victory inside. लेकिन हमारे अंदर जो है हम उस जीत को एक्सपीरियंस कर सकते हैं Through the faith in Jesus Christ. और जो हमारा विश्वास खुदावंद यीशु मसीह में है. How do you respond
और आप कैसे जो है अपने हालात के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं when you are facing a hard time in your life. और जब आप किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो उस वक्त आपका रिस्पॉन्स जो है वो कैसा होता है? It's one that we often fall for. और ये वो है जिससे कई बार हम जो है पीछे हट जाते हैं। आप शिकार बन जाते हैं इस चीज का। There are 4 essential things that I want to talk about for victory in trials. और मैं आज 4 बातों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि आपको जीत दे सकती हैं आपकी परीक्षाओं में। Count a joyful attitude. और सबसे पहली बात कि खुश रहें। Know an understanding mind. और एक समझ वाले दिमाग को पाएं। Let a surrendered will. और आप अपनी मर्जी को खुदा को दे दें। Ask for a heart that wants to believe. और आप ऐसे दिल को पाएं जो कि विश्वास करना चाहता है। Number 1, count a joyful attitude. और सबसे पहली बात कि आप अपने स्वभाव में खुशी लेकर आएं। Count or consider means to take stock of. और काउंट या कंसीडर करने का मतलब है कि किसी चीज को आप पाते हैं। Consider carefully. और आप बहुत ही सोच विचार कर Investigate देखें fully. और पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल What are the करें। things that we are to consider? और कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर हमें सोच विचार करने की जरूरत है। Consider the facts about trials. और आप उन बातों को देखिए जो कि परीक्षाओं के साथ जुड़ी हुई James हैं। does not say if trials come, और याकूब ने ये नहीं कहा कि अगर परीक्षाएं आएंगी, but when they come. उसने कहा जब परीक्षा आएगी। So expect them. और इसका मतलब ये है कि मसीही होने के नाते आपको परीक्षाओं को अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट करने की Just जरूरत because you आपके are a साथ। believer, you are not excused. और क्योंकि आप मसीह में एक विश्वासी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कभी कोई प्रॉब्लम या परीक्षा नहीं आएगी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, we are going to have problems in life. और मसीही जिंदगी जो है उसमें आपके अंदर जो है बहुत सी मुश्किलातों से आपको गुजरना पड़ेगा। Proverbs tells us that the rains fall on the just and the unjust. नीति वचन कहता है कि जो बारिश है वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर ही पड़ती है। Satan fights us. और शैतान जो है वो हमारे साथ लड़ता है। The world oppresses us. और दुनिया जो है वो हम पर दबाव डालती है। That means this life is full of battles. और इसका मतलब है ये जिंदगी जो है इसमें बहुत बड़े-बड़े युद्ध हमारे सामने I've होंगे। been talking to a family who says, why do we keep on getting trials and temptations? Why do we keep on getting battles in our life? और मैं एक परिवार से बात कर रहा था, वो मुझे कह रहे थे कि क्यों हम पर अलग-अलग तरह की परीक्षाएं आती हैं, क्यों हमें ही बहुत सी लड़ाइयों को लड़ना पड़ रहा है। Well, we're going to consider that today. और आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता Consider हूँ। many different trials. और आज मैं अलग-अलग नाना प्रकार की परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। Emotional trials. और कई जो कि भावुक होती हैं। Trials at work. और वो जो कि हमारे काम पर हैं। Trials at home. और जो कि घर पर हैं। Physical trials. और जो कि शारीरिक हैं। Trials generally come from 1 or 2 sources. और जो परीक्षाएं जो है वो 1 या 2 चीजों से आती हैं। There are trials that we experience as a result of living the Christian life. और एक वो परीक्षा है जो कि मसीही जिंदगी जीने के कारण आती है। In fact, this is probably what James had in mind as he wrote this letter to the 12 tribes. और मैं बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये वो परीक्षा के बारे में याकूब बात कर रहा है जब वो यहाँ पर 12 ट्राइब्स के बारे में There are बात कर रहा still है। many in our world who are experiencing persecution for their faith. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अत्याचार को सह रहे हैं क्योंकि उनका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है। Do you know that China alone there are 1100 people who are executed monthly? और आप जानते हैं कि चाइना में 1100 लोग जो है उन्हें एक्सिक्यूट करा जाता है, उन पर सजा डाली जाती है Why? विश्वास के कारण। Because of their faith. क्योंकि वो विश्वास जो है वो खुदावंद यीशु पर है। In the Middle East, to become a believer is an automatic death sentence. और अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, वहां पर अगर आप खुदावंद पर विश्वास करते हैं तो आपको मौत की सजा है। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਬੋਇਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। We have got so much to be thankful for. और हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हमें खुदा का थैंक यू करने की, धन्यवाद करने की जरूरत है। This is not your house, this is not my house, this is God's house. ये आपका घर या मेरा घर नहीं है, ये खुदा का घर है, ये रब का घर है। When we come here,
और जब हम यहाँ पर आते हैं we're here to worship a living God. और हम यहाँ पर आके अपने खुदा की आराधना करते हैं We need to pray. और हमें प्रार्थना करने की We need जरूरत to है। pray for our brothers and sisters in Christ who are experiencing trials, 1100 dead in a month. और हमें अपने भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करनी है जिन पर अत्याचार किया जा रहा है और 1100 लोगों को जो है मारा जा रहा है, सजा दी जा रही है Every month. और ये हर एक महीने होता है। And in the Middle East, if you become a Christian, you have an automatic death license on you. और अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं तो आपको वहाँ ऑटोमेटिकली जो है आपको मौत की सजा सुना दी जाती है अगर आप खुदावन पर विश्वास करते हैं। And yet we have all the freedom in this country to come and worship. And what? Guess what? It's raining. आज मेरा सर दुखता, आज नहीं मैं जाना, आज प्रोने आ रहे हैं कि आज मैं काम करना है। और इस देश में जो है हमें खुली आजादी मिल रही है कि हम खुदा की तारीफ कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसके घर आ सके, लेकिन हमारे पास बहुत से बहाने हैं कि हम घर पर रहते हैं, खुदा के घर आने से इतराते हैं। God forgive us. खुदा हमें माफ करे। We're living in a country that has given us freedom. We can worship in our house here without any restrictions. और हम खुदा के घर आ सकते हैं और हम पर कोई रोक टोक नहीं है बाकी देशों की तरह। But let me tell you something. लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ Be ready when the door might one day be slammed against us and we will have persecution on our own doorstep. और आप तैयार रहिएगा जब आप भी के दरवाजे पर जो है वो खटखटाहट होगी और आप भी उस अत्याचार के लिए तैयार होंगे। That day could be very near. और वो दिन बहुत ही जल्द आ सकता है। We have it pretty good in the Western world. और जो ये वेस्टर्न दुनिया है यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा आजादी है, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। Our trials come in a different way. और आप जानते हैं हमारी परीक्षाएं अलग अलग तरह में हैं। Another source. और कोई और सोर्स है, कोई और तरीका है। They are the unknown, unexpected experiences of life. और ये वो हमारी जिंदगी के एहसास के एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं। And we do not have any control over such experiences. और ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इन पर हमारा कोई काबू नहीं है। Now, who would have thought? Who would have predicted? Who would have thought that people would hijack 4 aeroplanes and take them into a building? Who would have thought that? और किसने सोचा था कि लोग जो है वो 4 एरोप्लेन्स को हाईजैक करके एक इमारत, एक बिल्डिंग में ले जाएंगे? With its consequences of unbelievable loss of lives. और कितना ज्यादा तबाही का मंजर हुआ और कितनी जानें जो है वो तबाह होगी इस And हादसे में। these kind of trials are unexpected. और ये ऐसी ट्रायल्स हैं, परीक्षाएं हैं जो कि कभी पता ही नहीं चलता कि कब हो जाएंगी। The Apostle Peter also says, "Dear friends, do not be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you." और यहाँ तक कि जो पतरस है उसने कहा कि मेरे दोस्तों तुम जो है सरप्राइज न होना जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी और जब तुम इनसे गुजरोगे जो कि तुम्हारे साथ होगा। Instead, be very glad. In other words, rejoice. उसने कहा कि तुम जो है खुशी मनाना, Because these trials will make you partners with Christ. Hallelujah. और उसने कहा कि ये परीक्षाएं जो है ये खुदावन के साथ तुम्हें भागीदार ठहराएंगी। कहते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ਨੂੰ suffering नहीं हुई, सब तो जाती persecution suffering खुदावन यीशु मसीह ने सुनी दे लैंड तो पे तो खाती है कि ताली पुटी मुंह ते थोकिया मारा कुटिया इथे वर्षा लगा कहते थक गए he took it all. और खुदावन यीशु मसीह जो है उसने दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार सहा और उसके साथ भी लोगों ने बहुत बुरा सलूक करा और उसे जो है शारीरिक तौर पर भी बहुत ज्यादा दुख सहना पड़ा। And that's why we're saying we are partners in Christ even in our suffering. और जब हम अपनी जिंदगी में परीक्षाओं से गुजरते हैं या किसी भी तरह की किसी सफरिंग से गुजरते हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह में उसके भागीदार हैं। But afterwards, लेकिन आखिर में you will have the wonderful joy of sharing His glory. और Hallelujah. आपके पास वो मौका होगा कि आप उसकी महिमा के हकदार बन सके। And then it will be displayed to all the world. और फिर आप सबके सामने जो है उस महिमा को पाएंगे। So evaluate your goals. और आज आप अपने गोल्स को देखें, पहचाने उनको। Evaluate your priorities. और आज आप देखें कि कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा जरूरी हैं। शोभरी का जे 11 बंदे 11 जितने ने डिसाइबल्स इन्हीं दुनिया को चेंज कर सकते और आज जितने करता है कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान नहीं होना था उन्होंने दुनिया सारी हिलाती 11 तो जाते ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 11 ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।
Hallelujah. Live for the things which matter the most. और आप उन चीजों के लिए जिंदा रहें जो कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी Our है। values determine our evaluations. और हमारी जो जिंदगी की कीमत है वो जाहिर करेगी कि हम किस चीज के लिए ज्यादा जरूरी समझते हैं If you अपनी जिंदगी value में। comfort more than character, then trials will upset us. और अगर आप जो है वैल्यू करते हैं ज्यादा परीक्षाओं को, तो जो आपकी जिंदगी में जब ये परीक्षाएं आएंगी तो आप ज्यादा से ज्यादा परेशान एकदम से हो जाएंगे। If we value the physical and the material more than the spiritual, we will not be able to count it all joy. और अगर हम अपनी जिंदगी में जो शारीरिक चीजें हैं उन्हें ज्यादा जरूरी सोचते हैं, तो फिर ये आत्मिक चीजें जब हमारी जिंदगी में आएगी या ये जो भी कुछ होगा हम उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं कर पाएंगे। If we live for the present and not the future, then the trials will make us bitter, not better. और अगर हम अपने प्रेजेंट के साथ रहेंगे और अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे, ये ट्रायल्स जो है, परीक्षाएं जो है, ये हमें कड़वा कर देंगी। In Job chapter 23 verse 10, when God is finished with me, I shall shine as gold. और अय्यूब ने 23 अध्याय उसकी 10 आयत में कहा, जब खुदावन मुझ में अपने काम को खत्म करेगा तो मैं सोने की तरह खरा हो जाऊंगा और चमकूंगा। When trials come, और जब हमारी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, don't pretend. और आप जो है दिखावा ना करें, Don't try to resolve them. और आप उन्हें जो है खुद ब खुद सुलझाने की कोशिश मत करें। Simply look at the trial through the eyes of faith. और आप विश्वास की आंखों के साथ उन ट्रायल्स को देखें। Outlook determines outcome. और जो हमारा जो नजरिया है वो जाहिर करता है कि क्या होने वाला है। To end with joy, begin with joy. और अगर आप खत्म करना चाहते हैं खुशी के साथ, तो खुशी के साथ ही शुरुआत कीजिए। But how is it possible to rejoice in the middle of trials? That is what I'm hearing from you. और जो है आप शायद ये सवाल कर रहे हैं कि जब नाना प्रकार की परीक्षाएं आती है तो हम उसमें खुशी कैसे मना सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤਕਲੀਫ, ਗਮ, ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Faith is always tested. और विश्वास जो है वो हमेशा परखा जाता है। To increase our faith, God tests us to bring out our best. और जब विश्वास की परख होती है तो खुदावंद हमारी जिंदगी में हमारे बेस्ट को लेकर आता है। But Satan tempts to bring out our worst. और शैतान जो है वो हमारे अंदर से जो वर्स्ट चीजें, खराब चीजें, उन्हें लेकर आना चाहता है। Testing works for us, not against us. और जो परख है वो हमारे लिए काम करती है, ना कि हमारे खिलाफ काम करती है। 1 Peter chapter 1 verse 7, the testing of your faith, the approval of your faith, it is a genuine proven. और इसी तरह से कहा गया है कि जो विश्वास की परख है वो आपकी जिंदगी में आपको सिद्ध करती है। These trials are only to test your faith. और ये परीक्षाएं जो है ये सिर्फ विश्वास की परख के लिए आती हैं। To show that it is strong and pure. और ताकि आप देख सकें कि आप शुद्ध और बहुत बेहतर बनते जा It रहे is हैं। being tested as fire tests and purifies gold, and your faith is far more precious to God than mere gold. और जिस तरह से सोना खरा होता है वैसे आपके विश्वास की परख जो है वो आपको भी खरा करती है, और आपकी कीमत जो है वो सोने से कहीं उत्तम है। So if your faith remains strong after being tested by fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day that Jesus is revealed to the whole world. और जिस दिन जो है खुदावंद सारी दुनिया पर अपने प्लान को रिवील करेगा, उस दिन जो है आपके विश्वास की परख जो है वो आपकी जिंदगी में महिमा का कारण बनेगी और आपकी जिंदगी में आपको ऊंचा उठाएगी। God cannot and will not build our character without our cooperation. और खुदावंद जो है वो हमारे स्वभाव को, हमारे कैरेक्टर को हमारी मदद के बगैर बिल्डअप नहीं कर सकता है। Our God is the perfect gentleman. और हमारा खुदा जो है वो एक सिद्ध इंसान है और एक सिद्ध व्यक्ति था। He will not push. और वो कभी भी धक्का नहीं He लगाएगा will not prod. और वो आपको आकर हिलाएगा नहीं। He will not pull or drag us against our will. और वो हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। If we resist him, और अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे, the natural consequence will be his discipline. और जो एक आम सी बात है वो ये है कि वो अनुशासन, डिसिप्लिन लेकर आएगा। However, when we submit to him, लेकिन जब हम अपनी मर्जी को उसके अंदर दे देते हैं, उसे दे देते हैं, then he can accomplish all his work. और फिर वो अपने सारे काम को हमारी जिंदगी में पूरा कर सकता है। God has 3 tasks to complete in our growth for us, in us, through us, and for us. और खुदावंद जो है वो 3 कामों को हमारी जिंदगी में पूरा करता है, हमारे लिए और हमारे साथ और हमारी
जिंदगी में भी। For us, this is salvation. Jesus completed his work on the cross. और हमारे लिए ये है कि मुक्ति की खुदावन ने सारे काम को उस क्रूस पर खत्म कर दिया। In us, we are his workmanship, or literally his masterpiece. और हमारे अंदर इसलिए क्योंकि खुदावन ने हमें एक मास्टरपीस बनाया है, अपनी कारीगरी का एक हिस्सा बनाया है, और हम उसमें जो है एक बहुत उत्तम चीज है। This is a blessing. God builds our character and we become more like Jesus. और ये एक बहुत ही आशीष है कि खुदावंद हमारे कैरेक्टर को बिल्डअप करता है और हम जो है उसके जैसे बनते हैं। Through us, this is service. He has created us anew so that we can go to the good things He's planned for a long way. और हमारे द्वारा इसलिए क्योंकि हम उसकी सर्विस है, उसके काम को करते हैं और उसने हमें एक नया इंसान बनाया है ताकि हम उसमें उन अच्छे कामों को कर सकें जिसके लिए उसने हमें तैयार करा है। Do you know God doesn't work in us without our consent? और आप जानते हैं खुदावंद हमारे अंदर हमारी मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकता है। जी उन्होंने तुसी नहीं है ना दरवाजा खोलोगे अपने दिल दा तो उन्हें अंदर नहीं होना। दरवाजा अपने दिल दा खोलोगे तो उन्हें इनवाइट करोगे तो फिर खुदावंद ने अपने होना जिंदगी दे विच। We must surrender our will to His will. और हमें अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के साथ जोड़ देना और अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में दे देना है। If we face trials without surrendering, we will remain immature infants. और अगर हम अपनी परीक्षाओं में अपनी जिंदगी में खुदावंद की मर्जी को नहीं शामिल करते, अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर नहीं करते, तो हम अपने विश्वास में और अपनी जिंदगी में इमेच्योर यानी कि छोटे ही रहते हैं। Number 4, ask a heart that wants to believe. और आप खुदा से मांगिएगा उस दिल को जो कि खुदा पर पूरी रीति से विश्वास कर सके। So when the unexpected trials of life and tribulations, और जब आपकी जिंदगी में नाना प्रकार की परीक्षाएं या मुसीबतें आती हैं, when they're on our doorstep, और जब वो आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं, how are we to respond? और हम उनके साथ कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? How are we to pray? और हमें कैसे दुआ करने की जरूरत What है? should we ask God for? और हमें खुदा से क्या मांगने की जरूरत है? What do you think? आपको क्या लगता है? James gives the answer. और याकूब जो है वो हमें इसका जवाब देता है। Prayer for wisdom. और हमें दुआ करनी है कि खुदा हमें अकल और दुनियाई दे। Do you know wisdom is more than knowledge? आप जानते हैं कि जो विजडम है, जो आपकी अकल है, वो नॉलेज से, ज्ञान से कहीं बड़ी है। Someone has said that knowledge is the ability to take things apart. और आप जानते हैं कि जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, वो चीजों को इधर उधर करना है, While wisdom is the ability to put it back together again. और जो विजडम है, खुदा का जो बुद्धि देना है, वो है कि जो चीजें टूट जाती हैं उन्हें एक साथ जोड़ना है। We need wisdom so we will not waste the opportunity God is giving us to mature. और हमें खुदा से बुद्धि मांगनी है ताकि खुदावन जो मौके हमें दे रहा है उन मौकों को हम वेस्ट ना करें अपनी जिंदगी में। Wisdom helps us to use these circumstances for our good and God's glory. और विजडम से जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हम उन मौकों को खुदावन की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Life is going to shovel dirt on you. और जिंदगी जो है वो आप पर बहुत सी मिट्टी को उड़ाएगी, All kinds of dirt. और अलग अलग तरह की जो मिट्टी है, जो डस्ट है, आपके पर आएगी। The trick to getting out of the well like the donkey was in the well और जिस तरह से वो ट्रिक जो कि वो डोंकी ने इस्तेमाल करी थी, जो कि उस कुएं में गिर गया था, is to shake it off और आप जो है उसे हिलाते रहे मिट्टी को, and keep on stepping on it. और आप उसके ऊपर ऊपर आते रहे, One step at a time. और एक कदम जब आप लेते हैं एक बार, Each of our troubles, and this is from personal experience, each of our trouble is a stepping stone. और हर एक जो कि हम पर मुसीबत आती है वो हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन यानी कि एक कदम आगे बढ़ता है। We can get at the deepest well और हम जो है अपनी जिंदगी के बहुत जो गहरे कुएं हैं उससे बाहर आ सकते हैं, just by not stopping. और सिर्फ इसलिए कि हम रुकते नहीं हैं। Never give up. और कभी भी हार मत मानिए। I said never give up. और मैं कहता हूँ कि हार मत मानिए। जिन्ने भी बैठे हैं या कभी भी give up नहीं करना. Never give up. Shake it off and take a step up. और कभी भी हार मत मानिएगा और उस मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़कर एक और कदम आगे लीजिएगा और ऊपर उठिएगा। Don't waste the opportunities और कभी भी अपनी जिंदगी के मौकों को मत खोइएगा। God gives you to prove to Himself. और जब वो खुदा मौके देता है आपको कि आप खुदा को प्रूव कर सकें। Do you know that the time before, not this time, but the time before when we went on Soho Road and we were preaching and we were outside Cannon Street Memorial Baptist Church. और मैं बात कर रहा हूँ कि जब वो मौका हमें मिला था कि जब हम वहाँ पर जाकर प्रीच कर रहे थे कैनन स्ट्रीट मेमोरियल चर्च के बाहर, जब हम आउटरीच कर रहे थे, There's a butcher's shop which says read the Quran, the last testament of God.
और वहाँ पर एक जो शॉप है उन्होंने लिखा हुआ था कि कुरान के जो लास्ट टेस्टमेंट्स हैं उनको पढ़िए। They stopped Brother Subhash और उन्होंने भाई सुभाष को रोक दिया and he said, "We heard what you were saying." उन्होंने कहा कि हमने सुना कि आपने क्या कहा है। Brother Subhash said, "Well, you've received God's word in your ear, and that's exactly what we wanted to do." और ब्रदर सुभाष ने कहा कि हम खुदा का कलाम यहाँ पर प्रीच कर रहे हैं और आपके कानों ने उसे सुन लिया और आप उसे कबूल कीजिए अपनी Never जिंदगी में। miss an opportunity to preach the word. और कभी भी किसी मौके को मत खोइएगा जब आप खुदा के कलाम को प्रीच कर सकें। Take it to the byways and the highways. और जहाँ भी जिस भी कोने में जिस भी नुक्कड़ में आप जा सकते हैं आप खुदा के कलाम को वहाँ पर लेकर जाएं। You've got so many relatives आपके बहुत से रिश्तेदार हैं who are not Christians. और जो कि पूरी तरह से मसीही नहीं हैं They will go to hell if you don't preach the gospel to them. और वो नर्क में चले जाएंगे अगर आप खुदा का कलाम उनको नहीं प्रीच करेंगे। So take every opportunity. Don't waste the opportunity God has given you. और किसी भी मौके को मत खोए, जो भी अपॉर्चुनिटी खुदा आपको देता है उसे इस्तेमाल कीजिएगा। James tells us what to pray for. और याकूब हमें बताता है कि किस चीज के लिए दुआ करनी है। Wisdom. उसने कहा कि बुद्धि के लिए दुआ He करो। also tells us how to pray. उसने बताया है कि कैसे दुआ करनी है। Confidently. उसने कहा कि भरोसे के साथ दुआ करनी Specifically. है। उसने कहा कि बिल्कुल जो चीज चाहिए उसके लिए दुआ करनी है। Unwaveringly in उसने faith. कहा कि विश्वास में जो है डगमगाना नहीं है। When we do, God promises to answer. और जब हम ऐसा करते हैं खुदा वादा करता है कि मैं जवाब दूंगा। He will give us generously. उसने कहा कि मैं बहुतायत में He will दूंगा। give it to all of us उसने सबको देने का वादा किया है। without finding faults. उसने कहा कि मैं दोष लगाए बगैर तुम्हें दूंगा। No need to fear. और आपको घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। You may be in a situation. और आप किसी भी हालात में हो सकते हैं। You may be in a circumstance right now. और हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति अभी हो। Do not fear. और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। God is anxious to answer you. और खुदा जो है वो आपको जो है जवाब देने के लिए तैयार है। We don't have to doubt. और हमें उस पर शक करने की जरूरत नहीं God है। is faithful to His promise. और खुदावंद जो है वो वादों का पक्का और वफादार है। I can hear you say, "So what is it in for me then?" और आपको मैं सुन सकता हूँ कहते हुए कि मेरे लिए क्या है। Well, blessed is the man who perseveres under trials. और लिखा गया है कि आशीषित है वो व्यक्ति जो कि परीक्षाओं में भी खुदा में बना रहता Because है। when he has stood the test, और लिखा गया है कि जब वो परीक्षा खत्म होगी he will receive the crown of life और लिखा गया है कि वो जिंदगी के मुकुट को पाएगा। that God has promised to those who love Him. और जो खुदा ने वादा करा है अपने प्रेम करने वालों के लिए। Hey, देखिए करना है तुसी. What are you doing here today? It's a good question, है ना सब? और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ पर खुदा के घर क्या करने आए? की करना ही थे. You come here because you love the Lord. आप यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि आप अपने प्रभु से अपने want to खुदा से grow प्यार in the करते हैं। Lord. आप अपने खुदा में और ज्यादा बढ़ना चाहते हैं You want to be blessed by Him. और आप उसके द्वारा आशीषित होना चाहते हैं। So where is your love found? तो आपका प्यार कहाँ पर आपको मिलता And है? this is a good question. और ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। Is it found in God क्या वो खुदा में आपको मिलता है or is it found in the world? क्या फिर आपको दुनिया में मिलता है? What are you trusting in your deepest trials? और आप अपनी जिंदगी की गहरी मुश्किलातों पे किस पर विश्वास करते Who's हैं? going to get you through it? और कौन आपको उसमें से बाहर Is it going to निकालेगा? be the world क्या वो दुनिया आपको बाहर निकालेगी? or is it going to be God? क्या फिर खुदा आपको बाहर निकालेगा? You know, God wants us to grow when trials come. और खुदावंद चाहता है कि जिंदगी की नाना प्रकार की परीक्षाओं में हम अपनी जिंदगी में और ज्यादा आगे बढ़े। You are not on your own. और आप अकेले नहीं हैं। You will go through it. और आप इसके जो है इसमें से गुजरेंगे अपनी जिंदगी Don't में। give up. और आप हार मत मानिए। Keep the faith अपने विश्वास में बने रहिए and carry on the good work और आप अच्छे काम को खुदा में करते रहिएगा and be joyful. और खुशी के साथ भरे For रहिएगा the joy of the Lord is our strength. क्योंकि खुदा का आनंद ही हमारी खुशी जो है वही ताकत है हमारी। God bless you. खुदा आपको